Hare Krishna. Welcome you all on Srimad Bhagavad Gita Rapid Study, the first of its kind in Doha, Qatar. I believe, I'm not sure. Somebody must have already done it. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodhanandana Braja Jana Ranjana Yashodhanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodhanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Harinam Sankirtan Namo Sabki Jai Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai Nitai Gaur Premanand Hare Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshmridamena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manovesamasa Samasthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Bandeyam Sri Guru Shitapatimalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vijantam Sajibam Sadhuitam Sabadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpati Gopes Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Tapti Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavani Suri Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Pri Vancha Kalpataru Vaishakar Parshindu Vacha Patita Nama Pavani Krishna Vibhyo Namo Nama Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vishta Putri Shrimad Jayapata Akaswamani Namani Namo Acharya Padaya Nitaya Kripa Pradayine Gaur Katha Dhamadaya Nagar Grama Tarune Namo Vishnu Padaya Krishna Vishta Putri Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gaurvani Parcharini Nirvishesh Sunivadi Pashyat Desadarani Jai Srila Prabhupada
तो प्रभुपाद के अनुकंपा से, गुरुजन और वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से कृष्ण कथा निरंतर बहती चली जा रही है। आज हम पुरुषोत्तम योग के बारे में चर्चा करेंगे, सुनेंगे, ध्यान और मनन करेंगे। यह भगवद गीता का 15वां अध्याय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। न शुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सो पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान आज पुरुषोत्तम योग के बारे में बता रहे हैं। ईश्वर क्या है, कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता कहलाता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। किसके बारे में बात करी? ये जो भौतिक संसार है ये कैसा है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जिस प्रकार आप कोई अगर पेड़ नदी या जल के स्रोत के किनारे हो तो अगर जल में आप पेड़ को देखें तो पेड़ उल्टा नजर आता है। ठीक इसी प्रकार ये भौतिक प्रकृति उल्टी है। जड़ें ऊपर है यानी स्रोत ऊपर है और नीचे उसकी क्या है? शाखाएं हैं, पत्तियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं इसकी पत्तियां जो हैं वैदिक स्रोत हैं, ज्ञान मात्र है। अभी पत्तियां मनुष्य भी हो सकती हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब हो सकते हैं। ये पत्तियां हैं और ये क्या है? वैदिक स्रोत है। इनका स्रोत वेद है, वैदिक है, लेकिन इनको जानना भी चाहिए। यही वेद है। वेद का मतलब है जानने वाला। वेद देखने वाले जिसको पूरे ज्ञान का पता हो, और यही और वह वेदों का ज्ञाता है, वही वेदों को समझ सकता है। और वेदों में समझने वाली क्या चीज है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो इन चीजों को परवर्टेड रिफ्लेक्शन में भौतिक में देखता है उसको पता चलते सारी पत्तियां जड़ें जो है इनका स्रोत ऊपर है। वैकुंठ धाम इनका ऊपर है, स्रोत ऊपर है। इसका मतलब सब एक ही जगह से निकले हैं, और जब एक ही जगह से निकले हैं इसलिए मैं भी एक स्रोत हूं। इसलिए मैं न तो किसी से बड़ा हूं न किसी से छोटा हूं। तुम्हारा जो स्रोत है वही स्रोत मेरा भी है, और इसलिए आपस में वैमनस्यता नहीं रहती है। जैसे घर में किसी परिवार में 4-5 भाई हों तो उनको मालूम है इसका पिता भी यह है, मेरा पिता भी वो है, तो वैमनस्यता कम रहता है। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार को समझने के लिए यह परवर्टेड है, बिल्कुल उल्टा। जैसे हम यहां भौतिक संसार में हम जो है मास्टर बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, नौकर कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन भौतिक आध्यात्मिक संसार में लोग मास्टर नहीं बनना चाहते हैं, लोग दास बनना चाहते हैं। दासानुदास। और यहाँ हम कहते हैं मास्टर बनना चाहते हैं, मास्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे। तो ये कहने का मकसद यह है कि ये भौतिक संसार परवर्टेड है, सब उल्टा। नेक्स्ट। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आगे, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर
तथा नीचे फैली हुई है। इसका मतलब सर्वत्र, हर जगह है, जो ऊपर से आई है हर जगह फैली हुई है, और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इनका संचार किससे होता है? प्रकृति के तीनों गुणों से, रज, सत्व एंड तमः, इसको पोषित करते हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं, जो टहनियां है सेंस ऑब्जेक्ट इंद्रिय विषय हैं, और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है। कैसे? अगर आपने वृक्ष, बड़ वृक्ष देखा हो तो उसकी जड़ें ऊपर भी लगती, सब पेड़ों की जड़ें नीचे होती है, लेकिन बड़ वृक्ष की तब जड़ें ऊपर आ जाती है। और वो कहते हैं एक्चुअली में जो बड़ वृक्ष हैं वो साधु हैं, अरे उनकी दाढ़ी है। आगे, जो मानव समाज को सकाम कर्मों से बंधी हुई है, यानी सकाम कर्म भी बंधन करते हैं, सारे कर्म बंधन में है, सिर्फ अकर्म बंधन में नहीं है। तो इसकी टहनियां जो है वो इंद्रिय विषय हैं, लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, और वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, ऊपर नीचे सर्वत्र। तो विषय भोग का मतलब है आप जिधर देखोगे वहां आपको विषय भोग मिलेगा, चाहे ऊपर देखो, नीचे देखो, बाएं देखो, दाहिने देखो, दसों दिशाओं में देखो, ये टहनियां इंद्र विषय हैं, और उनको पाने के लालसा, उनको भोगने के लालसा, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसकी टहनियों में, जो ऊपर की टहनियां, उसमें देव भी निवास करते हैं, देव देवता भी निवास करते हैं, और वो भी अपने अपने गुणों में निवास करते हैं। जैसे मनुष्य भी अनेक प्रकार के गुण होते हैं, जैसे कल हम समझा रहे थे कि हमारे अंदर सारे गुण है, हमारे अंदर सारे गुण है, सत्व भी है, रजस भी है, तमः भी है, पर इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कभी समय के अनुसार, कभी जगह के अनुसार ये बदलते रहते हैं। न रूपमस्य ततो पल्लव्यते, नान्तो न चार्दिन्न च सम्पतिस्था, ऐश्वर्यमेनं सुविरूढमूलम्, असंशस्त्रेण दृढेन चित्वा, तथा पदं तत् परिम् आगन्तव्यम्, यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयात्, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति परसिता पुराणी। आप ध्यान से सुनिए, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार कोई पेड़ हो, पेड़ की जड़ें कहां तक हैं ऊपर से देखने पर पता नहीं लग सकता है, जब तक हम उसका उन्मूलन न कर दें, जब तक चारों तरफ खुदाई करके उसको उसकी जड़ों तक न पहुंच जाए। इस प्रकार इस अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। जो बड़े वृक्ष है, जो ऊपर से आया है, ऊपर कैसे हम पता करेंगे? तभी पता करेंगे जब सत्वगुण में हो गए, ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था, तभी पता कर पाएंगे। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ इट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और वृक्ष की कितनी जड़ें होती हैं, कौन सी जड़ इसको आप आदि मानेंगे? अगर एक वृक्ष जो है 10,000 15,000 जड़ें हैं, तो किस जड़ को आप कहेंगे ये आदि है और ये आखिरी है? नहीं पता चल सकता है। हम खाली इतना कह सकते हैं जड़ें हैं, आगे पीछे का पता नहीं है। और इसका अंत कहाँ है, कहां पे समाप्त होती है? क्या तना भी जड़ है, या जो मिट्टी के नीचे वही जड़ है? और इसका आधार कहाँ है? लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। इसके अंदर क्या है? इंद्रियां हैं, इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय विषय है।
तो इंद्रिय दृष्टि उनको जो है दृढ़ेन चत्वा, इसको काटना है, यानी इससे अलग होना है, इसकी अनुभूति से अलग होना है, इसको दोहन करने से अलग होना है, काट गिराए, फिनिश करे। और जब किसी को काट गिराया जाता है तो फिर आगे वो फलीभूत नहीं होता है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और वो एक ही स्थान है, वो है वैकुंठ, जहां से जाने के पश्चात लोग लौटते नहीं है। वरना इस भौतिक संसार में आप जहां भी जाएंगे आपको लौटना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि समुद्र में जब जहाज चलते हैं और जब किसी पक्षी ने उसके ऊपर घोंसला बना दिया, अब ये अगर बीच समुद्र में चला जाता है ये जहाज, तो पक्षी उड़ता है, बहुत ऊंची उड़ान भरता है, और फिर घूम फिर के वापस उसी प्लेन में आ जाता है, उसी प्लेन का जो जहाज में आ जाता है। तो कहने का मकसद है इस भौतिक संसार में आप जहां भी जाएंगे लौट के वापस आए। जिस प्रकार मृत्यु संसार है, अगर हम पाताल चले जाएं तो मृत्यु संसार में वापस आना, अगर हम स्वर्ग चले जाएं तो मृत्यु संसार में आना। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसी जगह जाओ जहां से वापस न लौटना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। तो अगर भगवान को हमने शरण ग्रहण कर ली तब हम वहां रह सकते हैं, जिससे अनादिकाल के प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है, और वही विस्तार है। आध्यात्म जगत का विस्तार भी गोलोक से है। मथुरा, वृंदावन, श्वेत द्वीप, द्वारिका और गोकुल से है। तो तब पता चलेगा ये चीज कहां से आई है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख समग्ने गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। आगे भगवान कहते हैं जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। निर्माण मोह जित संग दोषा, निर्माण भी बनना है, निर्मोह भी बनना है, संग को भी जीतना है, और विनिवृत्त काम से निवृत्त होना है, द्वंद्व से निवृत्त होना है, सुख दुख से निवृत्त होना है, वही उस परम धाम को, पदम अव्ययम को प्राप्त कर सकता है। यानी भगवान के धाम को प्राप्त करने की भगवान ने अनेक विधियां बताई हैं, अनेक विधियां बताई हैं। हम किसी भी विधि को पकड़ लें, हम परम धाम को जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पकड़ी तो सही। अगर पकड़ने की इच्छा ना हो तो बेचारे भगवान भी क्या करेंगे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब भगवान बोलते वो धाम कैसा है पता तो चले। कहते हैं वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वही इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ये श्लोक हम बार बार इसका उद्घोष करते रहते हैं। तो भगवान के धाम जाने के लिए सूर्य की रोशनी नहीं है, इसका मतलब वहां अंधकार नहीं है। इस जगत में अंधकार है, अंधकूप है, इसको रोशनी करने के लिए भगवान ने चंद्र, तारे, सूर्य रोशनी दी है।
लेकिन वहां कोई अंधकार नहीं है, दोनों का अंधकार, भौतिक अंधकार और आध्यात्म अंधकार। तो कहते हैं वहां मेरे परम धाम में सूर्य चंद्र द्वारा प्रकाशित नहीं होता, स्वयं प्रकाशित है, जैसे मणि होती है, लेकिन मणि के लिए भी रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। मणि भी नहीं चमकते अगर उसे वो मणि रिफ्लेक्ट करती है, मणि में अपनी चमक नहीं होती है। लेकिन वहां ये चिंतामणि है, वहां भगवान का धाम जो चिंतामणि, परकर शब्द सुकल्प वृक्ष, वो चिंतामणि है, वो स्वयं ज्योति है। न वहां अग्नि है, न बिजली है। अग्नि यानी आपको खाने बनाने की जरूरत नहीं है अगर वहां अंधेरा नहीं है। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, देखो लिखा जो लोग, हर लोग नहीं लिखा भगवान ने, जो लोग, यानी कोई बिल्ला, कौन सा वाला? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः या बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, पहले तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जो पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते, क्योंकि यहाँ कुंठा है और वो है वैकुंठ। कभी आपने देखा हो कोई अगर किसी कुएं में गिर जाए और उसको बाहर निकाल दिया जाए, वो आदमी दोबारा कुएं में कभी नहीं गिरना चाहेगा, बिल्कुल नहीं गिरना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या है? जिसने एक बार भौतिक संसार देख लिया और अगर वो वैकुंठ को चला गया, वो कभी भी यहाँ आने की इच्छा नहीं करेगा, कभी भी नहीं। लेकिन हम वहां कब तक रहेंगे? बार बार ये विषय आता है कि अगर हम यहाँ वहां थे तो यहाँ क्यों आए, और वहां चले जाएंगे तो फिर वो लोग कौन आते हैं? यानी कि जब तक हम भगवान की सेवा करते रहें, अपने धर्म का पालन करते रहें, तब तक हम वहां चिरकाल तक रहेंगे। और जैसे ही भगवान के साथ हमारी वैमनस्यता हुई, भगवान कहेंगे फिर आप अपना घर ले लो, अपनी जगह ले लो। वहां प्रभुपाद कहते हैं लॉर्ड इट ओवर व्हाट मटेरियल नेचर। हम तब तक वहां रह सकते हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करष्यति। आगे भगवान बताते हैं कि इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। ममै वांसो, बद्ध जीवन के कारण वे यहाँ इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। कभी कभी इंद्र तृप्ति के लिए हम करते हैं, पेट खराब हो जाता है, अपच हो जाता है, ज्यादा आने से कई उल्टियां आ जाती है और फिर भी जैसे थोड़ी तबीयत ठीक हुई, फिर वहीं दोबारा वहीं खाना शुरू कर देते हैं। ये मालूम नहीं कि कल तो मेरी तबीयत खराब थी, आज तो बंद करो, लेकिन नहीं, फिर वही शुरू हो जाता है। तो बद्ध जीवन के कारण इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं और इंद्रियां तृप्त होती नहीं है। दुष्पूरेणान लेन च, जितना ज्यादा हम उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ज्यादा ललक, लालसा, चेष्टा और बढ़ती जाती है। और इसमें इंद्र के अलावा मन भी सम्मिलित है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः मोक्षाय विषय संगो निर्विषय निर्मुक्तम विषय मना। ये मन मोक्ष और बंधन का कारण है। अब इस मन को हम दोस्त के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या दुश्मन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी धारणा है, ये हमारी चेतना है, ये हमारा बुद्धि का विकास है। ये तय करेगा कि हमको क्या, कब और कैसे कार्य करना चाहिए। शरीरं यदमाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वरा गिरित्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्।
इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार यह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन ये सब इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग और आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने अहंकार के लिए, ये सब जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है और जन्म जन्मांतर तक चलता ही रहेगा, जब तक कि पूरी प्रलय न हो जाए और आप सब लोग हैं हम उठ करके गर्भदाक्षय विष्णु के शरीर में न चले जाएं। तब तक ये शरीर की यात्रा निरंतर चलती रहेगी। बार बार हम कहते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक, और ये यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती है जब तक जीव अपने सारे कर्मों पाप और पुण्य को समाप्त न कर दे, भगवान के चरणों में शरणागति न हो और बुद्धि और विवेक के द्वारा ये समझ ले कि मेरी आत्मा के लिए श्रेष्ठ कर क्या है। तो भगवान ने बख्शा हम हित काम्य या शुरू में परमम वचः। तो जब भगवान के वचन सुनेगा जो हमारे हित के लिए है तो हम सही रास्ते पे चलेंगे, वरना इंद्रिय तृप्ति के लिए हम भटकते ही रहेंगे और भटक ही रहे। नेक्स्ट। श्रोत्रम चक्षु अस्पृशनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान् उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता रहता है। आपने देखा होगा कि पशु योनि में हर एक पशु उसकी एक विशेष इंद्रियां ज्यादा प्रबल होती हैं, चाहे तो सूंघने की हो या देखने की हो या खाने की हो या सुनने की हो या चलने की हो या शरीर हो। तो जिस प्रकार प्रवृत्ति होती है, अगर हम इस जन्म में खूब खाते हैं तो भगवान ठीक है भाई इस बच्चे को हाथी का शरीर दे दो। जो हम बहुत चौकन्ने रहते हैं, हमेशा हम चलायमान रहते हैं, तो बोला इसको हिरण बना दो। एक बार किसी ने प्रभुपाद से प्रश्न किया कि प्रभुपाद जो लोग समुद्र के बीचों में नंगे पड़े रहते हैं वो क्या बनते होंगे? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया वो लोग पेड़ बन जाते हैं और फिर नंगे रहेंगे, कोई 10,000 साल, कोई 50,000 साल, उनकी क्षय पूरी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं विशेष प्रकार के नाक, कान, आंख, जीभ, स्पर्श आदि प्राप्त करता है, हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। हर आदमी की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग अलग स्वभाव होता है, और जो कार्य हम कर रहे हैं आज, इन कार्यों के द्वारा हम अगले शरीर का संचन कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। और इस प्रकार भगवान कहते हैं विष्णु समूह का भोग करता है। अब बेचारे पिक को देख लीजिएगा वो क्या भोग करता है, वहीं सारा सो देख लीजिएगा खाली मोती खाता है। तो अलग अलग चीज है, अलग अलग भावना है। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां जैसी होंगी, जो इंद्रियां प्रबल होंगी वो वही बनेगा। उत्क्राम अंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितां विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे यह समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन
वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं वह सब देख सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु जी हैं जो हमारी आंखें खोल सकते हैं। किसके लिए? आध्यात्म के लिए। किसके लिए? भगवान को पहचानने के लिए। किसके लिए? शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। तो ये भगवान है। और उनकी आंखें ज्ञान के द्वारा, हाँ, आंख एक होती है चर्म चक्षु जो हमारी हैं, एक होती दिव्य चक्षु। उनका ऑयनमेंट गुरु के द्वारा खोला जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एन स्पिरिचुअल ऑपरेशन, आई ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है। और फिर वह सब देख सकता है। क्या देख सकता है? अच्छा, बुरा, भला या सात्विक या विकृत, सब समझता है। और तब अपने जीवन को इस तरह ढालता है कि भगवान के धाम जाकर फिर कभी वापस न लौटना पड़े। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्या अन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृत आत्मानो नैनं पश्यन्ते चेतसः। आगे भगवान कहते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और हम क्या हैं? हम हैं देह साक्षात्कार। हमें बनना है आत्मा साक्षात्कार। तभी हम प्रयत्न के द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? भगवान की विभूतियों को देख सकते हैं। उन विभूतियों में भगवान को भी देख सकते हैं। जैसे हम हजारों बार कह चुके हैं कि सबको भगवान में देखना, सबको भगवान में देखना या भगवान में सबको देखना, वही देख सकता है। और भगवान ने, याद है ना, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच बेना प्रणश्यति। वही दोबारा भगवान दूसरे से कहते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं और जो आत्म साक्षात को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो मन को विकसित करने के लिए महामंत्र का जाप, बुद्धि को पवित्र करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन अगर हम करें तो हमारी मन विकसित हो सकता है, बुद्धि का विकास हो सकता है, और तब हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयत्न करने पर हम वह स्थिति पा सकते हैं जो मुनिगण बड़ी आसानी से पा सकते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगत भास्यते अखिलम् यच्चन्द्रम् असि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। जो भी हम चीज देखते हैं, अच्छा या बुरा, जो प्रकृति है, वो सब भगवान से निकलती है। तजो विद्धि माम काम, ये समझ लो, ये जान लो, ये पहचान लो कि सब भगवान से उत्पन्न है। अब जो चीज भगवान से उत्पन्न होगी वो कैसे खराब हो सकती है? वो तो हमेशा सुंदर ही होगी। हमारा देखने का नजरिया अगर हम बदलें तो सब चीजें भगवान से आती हैं। अच्छा, ये सूर्य का तेज, अब आपने देखा ना 11वें चैप्टर में, सूर्य शास्त्र सह हजारों हजारों सूर्य के प्रकाश को अर्जुन ने देखा। तो यहाँ भगवान एक सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी सूर्य हैं सौर मंडल में वो सब भगवान से निकलते हैं। जितने असंख्य तारे हैं, चांद हैं,
सब भगवान से निकलती है। जिस हवा का हम अनुभव करते हैं, हमने भगवान ने कहा ना, रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सस सूर्य हो प्रणव सर्ववेदेषु सब देखे पौरुषम नरसो। जो इनका तेज है, जो इनका स्वाद है, जो इनकी किरणें हैं, भगवान कहते हैं मेरे से आती है ना। हम कभी कहते हैं हम आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि हम इन चीजों को न तो समझ पाते हैं और न ही भगवान को समझ पाते हैं कि किस तरह भगवान ने इन चीजों को उत्पन्न किया होगा। हमें संशय आ जाता है, कैसे हो सकता है? कौन बोला समझे कि प्रभु जी कैसे हो सकता है भगवान की एक आंख तो सूर्य, दूसरी आंख चंद्रमा है? बहुत अच्छा प्रश्न था। कैसे हो सकता है कि भगवान की एक आंख तो सूर्य है, दूसरी आंख चंद्र है? तो दोनों चंद्र होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। अरे भाई भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने हमको एक मुख दिया, रावण को 10 सिर दे दिया। बहुत सारे ऐसे नाग हैं जिनका हजारों सिर है, हजारों फण है, क्या किया जा सकता है? बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो 2 मुख एक पेट लेकर के पैदा होते हैं, या कभी 1 मुख और 2 पेट को लेकर पैदा होते हैं। भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन उन सब का उद्गम भगवान कहते हैं मेरे से है। बस ये है आज का टॉपिक, अंडरस्टैंड, सब चीज भगवान से है। नेक्स्ट, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। आगे कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति के सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। खाली चंद्र नहीं है, बोलिए मैं वनस्पतियों में रस प्रदान करता हूं। सूर्य बनकर उनको जो है पनपने में सहायता देते हैं, और चंद्र बनकर उनमें रस भरते हैं। और मेरी शक्ति से ये सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। जितना सौर मंडल है, सब चीजें आकाश में है, अपनी धुरी पे है, सब गतिशील है, कभी गतिमान है, लेकिन एक सेंटी इधर नहीं, 1 सेंटी उधर नहीं। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। ये मेरी प्रकृति है, मेरे आदि ने कार्य करती है। और हमारा अधीन, हमारे बच्चे ने काम करते, हमारी बीवी ने काम करते, हमारा पति ने काम करता, हमारे बॉस ने काम करते, हमारा असिस्टेंट काम नहीं करता, और फिर हम कहते हैं करता है मीति बनने थे, मैं हूं। न कोई हमारी बात मानता है, न कुछ है। एक बार एक लड़के ने चलती हुई लड़की को बोल दिया आई लव यू। क्या बोला? आई लव यू। तो लड़की ने जोर से झापड़ मारा, फिर बोला दोबारा बोल। तो उसने बोला जब तूने सुना ही नहीं दिया तूने झापड़ क्यों मारी? आप समझ रहे हैं कि जब तूने सुना ही नहीं तो झापड़ क्यों मारी भाई? दोबारा क्यों पूछ रही है? कहने का मकसद है कि हर आदमी की अपनी प्रकृति होती है, हम अपनी प्रकृति से कार्य करते हैं। हमें कोई चीज अच्छी होती अच्छी नहीं लगती, कोई बुरी होती अच्छी लगती है, हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव में अड़िग, क्या किया जा सकता है? तो इस प्रकार ये वनस्पति में जो रस है, और देखिए ये कितनी अजीब चीज है ना। आपने कितनी प्रकार की सब्जी खाई होगी, सब सब्जी में अलग रस। आपने कितने प्रकार के फल खाए होंगे, हर फल का अलग रस। ये जो वालनट होते हैं ना, वालनट, इसके बाहर एक छिलका होता है, छिलका निकालो तो वहां एक सेल निकलता है, और सेल को फोड़ो तो वहां वो अखरोट की गिरी मिलती है। भगवान ने कैसे उसको ढका है, किस प्रकार भगवान ने इससे संरचना की होगी, कैसे भगवान ने उनको रस दिया होगा। आप सोचिए तो सही, जितनी सब्जियां उनमें अलग रस, जितने फल उनमें अलग रस, हर चीज में अलग रस। जितने हम लोग हैं उनकी अलग वाणी, उनमें अलग सुगंध या दुर्गंध, जो भी आप कहें, हर आदमी की अलग सुगंध और दुर्गंध होती है। और इस प्रकार कुत्ता अपने मालिक को अगर 15-50 साल के बाद मिले ना, सूंघ करके पता चल जाता है ये मेरा मालिक है।
सूंघने की शक्ति के अलावा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारे अंदर हैं, ये वनस्पति में है या पेड़ों में है या फूल में है, सब भगवान की तरफ से आती है। कितना अद्भुत भगवान का साइंस है जिसको हम समझ ही नहीं पाते। हम अपने आप को नहीं समझ पाते तो भगवान को क्या समझे। हम देह साक्षात्कार में उलझे हुए हैं। कब हम आत्मा को समझेंगे, कब परमात्मा की अनुभूति होगी और कब भगवान की। लेकिन हमारे सुकृतियों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग डायरेक्ट भगवान को पहचान सकते हैं। जैसे कल परसों में बार बार ये बात करता हूँ, हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को सुला सकते हैं, भगवान को उठा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को भोजन दे सकते हैं, भगवान के वस्त्र बदल सकते हैं, भगवान के सामने नाच कर सकते हैं और भगवान से झगड़ा भी कर सकते हैं। ये पावर हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली है, नहीं तो हम क्या। भगवान ने कहा ना कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रबधन्ते अन्य देवताः। जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे नहीं जानते। हम उनमें भी एक है कि हम भगवान को, अब हमने भगवान का स्वरूप देखा, उनके तत्व को भी हमने समझा नहीं। हम समझते भगवान सिर्फ मंदिर में है, टॉयलेट में भगवान नहीं है, बेडरूम में भगवान नहीं है, गाड़ी में भगवान नहीं है, ऑफिस में भगवान नहीं है, जब हम पिकनिक करते हैं वहां भगवान नहीं है। भगवान तो मंदिर में है। अभी तक हमें अनुभूति नहीं है कि हम जहां हैं वहां भगवान है। मेरा भगवान तो मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, और बाई ओर में जितना आकाश है वो परमात्मा है। तो परमात्मा तो हर जगह हमारे साथ है। लेकिन हमें पता चला भगवान तो वृंदावन में रहते हैं, बाकी थोड़ी रहते हैं। ये तो भगवान जगन्नाथपुरी में, बाकी भगवान थोड़ी है। ये हमारे मंदिर में रहते हैं लेकिन बेडरूम में थोड़ी भगवान रहते हैं। ये अनुभूति जिस दिन हमें हो जाए कि भगवान हर जगह है। एक वैष्णव थे बंसीधर बाबा जी, वो गौर निताई की सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि गौर निताई को झोपड़ी में रखा और भिक्षा मांगने चले गए। जब भिक्षा मांग करके आए तो उनके घर में 2 पतीलियां थी जिसमें भोजन बनाते थे, कोई चोरी करके चला गया। अब बंसीदास बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया। दोनों भाई गौर निताई को इतना डांटा कि एक काम भी तुमसे नहीं होता, बर्तन चले गए, अब खाना भूखे रहो तुम। और बंसीधर बाबा जी ने कहा, देखिए बर्तन आएंगे तो खाना बनाऊंगा, नहीं तो मेरे को दोष मत देना। तब किसको पता चला कि बंसीदास बाबा जी के जो बर्तन चोरी हो गए, किसने एक बर्तन दे दिया। बंसीदास बाबा जी ने खाना बनाया और नित्यानंद को ऑफर किया, चैतन्य बाबा ऑफर नहीं किया। बोला अपना बर्तन ले गया, फिर खाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, अपना ख्याल खुद रखो। तो यहाँ ना कि वैष्णव लोग भगवान को भी आदेश देते हैं, और भगवान ने कहते हैं दूसरे दिन दूसरे बर्तन का वो के इंतजाम कर दिया। फिर 2 बर्तन हो गए। अब उस जैसे आपको मालूम है सनातन गोस्वामी ने भगवान को गुस्सा कर दिया कि पेड़ में लड़के रहते हो, कभी उधर नमक लाओ कभी रोटी लाओ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर, नमक चाहिए तो खुद अपना इंतजाम करो। तब मदन मोहन की कृपा थी कि किसी व्यापारी का नमक से भरा उनका जो सिप था वो फंस गया। वो बाबा जी के पास आए, बाबा जी ने कहा चलो तुम्हारा सिप निकल जाएगा। क्योंकि सिप निकल गया, उसने जो है आउट ऑफ कंपैशन एक बोरी उन्होंने नमक की इनको दे दी, सनातन गोस्वामी दे दी। अब सनातन गोस्वामी अब खाओ, भर के नमक खाओ। तो ऐसी अनुभूति है जब भगवान से प्यार हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे प्रभु कह रहे हैं कि मैंने भगवान से गुस्सा हो गया। हो ना गुस्सा, तुम्हारे अपने हैं, अपनों से तो गुस्सा आदमी होता है, नहीं किससे बात करे। बाहर से गुस्सा करेंगे तो झापड़ मार देगा। भगवान ऐसे गुस्सा करो झापड़ भी नहीं मारेगा, राधर मदद करेगा। तो गुस्सा हो सकते हैं, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, हर प्राणी के अंदर मैं वैश्वानर हूं।
लेकिन मालूम है आपको, ये बड़ी अजीब परिस्थिति है। एक प्रजाति सांप की है, जब उसको भूख लगता है, सांप की प्रजाति है, जब उसको भूख लगता है वो अपनी पूंछ को खाना शुरू कर देता है, और पूंछ को खाते खाते खुद मर जाता है, लेकिन पूंछ को नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार जो मच्छर है, मच्छर बताओ कैसे बढ़ते हैं? ज्यादा खून पी करके उनका पेट फट जाता है। तो कहते हैं वो पाचन शक्ति, वो सांप की पाचन शक्ति जो उसकी पूंछ को भी पचा देती है, वो कहते हैं मैं हूं सब जीवों में, मैं हूं। प्राणी नाम देहम आश्रित, सबकी देह में मैं आश्रित हूं। प्राणापान समायुक्त, और ये प्राण वायु, 4 प्रकार के जो 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 वायु है, श्वास है, रहकर इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। 4 प्रकार के अन्न है, बाय लिकिंग, बाय चूइंग, बाय ड्रिंकिंग एंड बाय गल्पिंग। ये 4 प्रकार भगवान कहते हैं मैं पचाता हूं। कैसी शक्ति है भगवान की! वो इसके अंदर इतनी एसिड है हमारे पेट के अंदर, उस एसिड से बड़े बड़े खाने पच जाते हैं, लेकिन हमारी त्वचा को कुछ नहीं होता। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, ये मांस उसके अंदर जठर अग्नि में पचा देते हैं, लेकिन उस एसिड के द्वारा हमारी त्वचा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर हमारे कैसा कंपार्टमेंट बनाया होगा, कैसी फैक्ट्री लगाई है भगवान जी ने, कि स्वतः ही स्वचालित है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं मैं ही अन्नों को पचाता हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वैदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। आसीन हूं, कैप्चर नहीं हूं, कैद नहीं है, आसीन है। जैसे हम कहते हैं आसीनम दीर्घ सत्रेण, आसीन है अपनी स्वेच्छा से, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस भगवान कहते हैं मेरे से होती है। अब भगवान की इच्छा है कब किसको स्मृति दे दे, कब उसका अपहरण कर ले, कभी उसको ज्ञान दे दे, ये भगवान के ऊपर है, और ये हमारे प्रारब्धों के ऊपर है। लेकिन सब करने वाले, कराने वाले सारे भगवान हैं। तो आइए उस भगवान को, श्री कृष्णाय वयम नमः, आइए उस श्री कृष्ण को वंदन करें, नमन करें, प्रणाम करें, जिसकी वजह से सारी सृष्टि अलग अलग तरीके से कार्य करती है, और हमें बोध नहीं होता है ये कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है। कभी बहुत सारी सरल चीजें याद नहीं रहती हैं, और कभी कठिन से कठिन चीज जो हमने कई साल पहले सुनी होगी वो याद आ जाती है। क्या माया है प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। हम कभी देहरादून में जब हम रहते थे तो पता चलता है कि नेस्पला रोड में बारिश हो रही है, लेकिन पलटन बाजार बिल्कुल सूखा पड़ा है या मुस्लिम में बर्फ गिरी हुई है, यहाँ एक बूंद पानी नहीं आया। कैसी कैसी माया है प्रभु की, कैसे कर पाते होंगे ऐसे। और कैसे हम भाग्यशाली हैं, उस कृष्ण का कम से कम नाम तो जानते हैं। उसके दिव्य को न जानने में शक्ति ना हो, लेकिन नाम तो जानते हैं ना, और उसकी दिव्य शक्तियों में नाम में ज्यादा अंतर थोड़ी है, सब एक है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। आहा, जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। च्युत कौन है? हम लोग। अच्युत कौन है? वैष्णव जन। तो वो च्युत भी है, अच्युत भी है, लेकिन हम यहां अपने कर्मों के द्वारा आए हैं, और वैष्णव लोग यहां भगवान की मर्जी से आए। बस फर्क इतना है, भगवान उनको भेजा है प्रचार के लिए,
लोगों को उभारने के लिए। सो जो च्युत है वो अपने कर्मों के द्वारा, जो च्युत है भगवान की कृपा से इसी संसार में रहते हैं। भौतिक जगत के प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, भौतिक जगत होते हैं, और आध्यात्मिक जगत के प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाते हैं। तो वैष्णव वृत्त कौन है? ये तो साइट सीइंग में आ रखे हैं यहाँ, तो वो भी सब अच्युत हैं। उत्तमः पुरुषः स्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। आप सुनिए, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। एक च्युत हो गया, अच्युत हो गया। भगवान को अच्युत कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ करें भगवान एक परम परमात्मा भी है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। सृष्टि का पालन, सृजन और विनिष्ट भगवान ही करते हैं। किसके साथ कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमको इतना मालूम होना चाहिए, जब मेरा अंत समय आए तो भगवान के नाम उच्चारण हो जाए, अंत्य नारायण शुद्ध हो जाए, तो भगवान की बड़ी कृपा है। और ये संभव है जब हम दिन रात इस कोशिश में लगे रहे हैं कि मुझे स्वधाम को जाना है, और तब कहीं हमारा दिल नहीं लगेगा। हम कार्य जरूर करेंगे, उस कार्य में लिप्त नहीं होंगे, कतई उसमें लिप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट, यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों से परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। वो हम बताना भूल गए कि वेदे से सर्वैरहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूं, या वेदों से मुझे ही जाना जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं क्योंकि मैं अक्षर अक्षर दोनों से परे हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। भगवान, लोग आते जाते रहते हैं, भगवान हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। आइए ढंग से सुने। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है या जानने की कोशिश करता है, यह सब कुछ जानने वाला है। अतएव ए भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जानना बहुत जरूरी है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृदयन्ते युगे या कलो दोषे निधि राजनस्ति एको महान गणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। कितनी अपॉर्चुनिटीज है ना हमारे पास, कितनी अपॉर्चुनिटी, इतनी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती हैं, कहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, लेकिन हम अपने बुद्धि और विवेक को खो बैठे हैं, इसलिए हमको इसका एहसास नहीं है, इसका ज्ञान नहीं। आइए लास्ट श्लोक ऑफ 15th चैप्टर। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं, हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। कौन? भगवद गीता, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान
हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हमारा प्रयास, हमें प्रयास तो करना है, बाकी तो भगवान देखेंगे ना। जिस प्रकार जो छोटा बच्चा है, जब माँ उसको चलना सिखाती है, गिरता है, चोट लगती है, माँ फिर उठाती है, कभी बिना हाथ पकड़े बोलते आजा आजा आजा, और बच्चा चलना सीख जाता है। क्यों? वो प्रयास करता है। तो जो आदमी प्रयास करेगा वो सफल जरूर होगा। तो आइए भक्त बनने का प्रयास करें, भक्ति करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग में रहने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा मनन और चिंतन का प्रयास करें। प्रयास से सब कुछ होता है, बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा, है। तो आइए मिलकर सभी प्रयास करते हैं कि भगवान की अनुभूति हो, भगवान को जान सकें, भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, तो हम भगवान की सेवा में रत रहेंगे, आनंद में रहेंगे, खुशी खुशी अपना जीवन रहेंगे और वही जीवन भगवान के लिए न्यौछावर कर देंगे। Thus ended Bhaktivedanta purports to the 15th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of Purushottama Yoga, the yoga of the Supreme Person. Hare Krishna.